हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड सभी को। और सभी का स्वागत है टैबरनेकल मिनिस्ट्री इंटरनेशनल एंड चर्च ऑफ द रॉक इंटरनेशनल के बाइबल स्टडी में। और हमारा एक उम्दा बाइबल स्टडी चल रहा है और वो बाइबल स्टडी है विश्वास स्वर्ग का चलन। आमेन आमेन। और मुझे विश्वास है और गारंटी है कि बहुतांश लोगों को, बहुत सारे लोगों को इसके द्वारा आशीष मिल रही है। और मुझे विश्वास है कि इस विश्वास के अभ्यास के द्वारा आप आपके जवाब पा सकते हैं और बहुत बहुत लोग पा रहे हैं। तो कोई वक्त ज़ाया ना करते हुए तुरंत हम आज के विषय में जाते हैं और उसके पहले हम पवित्र आत्मा का स्वागत करेंगे। आइए हम दुआ करते हैं। थैंक यू लॉर्ड माय गॉड, आई गिव यू द प्रेज, आई गिव यू द वर्शिप, ग्लोरी, ऑनर, power, praise, and all thanks a million times. Thank you for your faithfulness, for your grace, for your mercy, for your love that is so abundantly rich over our life, oh Lord my God. Holy Spirit of God, you take charge right now, Lord my God, and thou art welcome, Lord my God, thou art welcome in our lives. Come, mighty comforter, come, mighty counselor, thou art welcome, Lord. Lead us in this time is my prayer unto thee, O Lord my God. Holy Spirit of God, thank you for anointing today's entire service, Lord my God. Thank you for anointing today's word, Lord my God. Thank you for anointing today's study, Lord my God. Thank you, beloved Holy Spirit of God, wonderful teacher. We welcome you, Lord. Come, mighty comforter, come, mighty counselor, come, beloved teacher of the Lord. Come and teach us your precious word, Lord my God. Reveal to us, O Lord my God, Rhema for our lives, O Lord my God. Thank you for changing our word from Logos into Rhema, Lord. And we need it as my prayer unto thee, O Lord my God. Speak to our lives. Give us the grace to understand your word and to bring forth fruit hundredfold, Lord. Thank you once again for this moment, O Lord. Lead us in this time is my prayer unto thee. In Jesus' mighty name we pray and we ask. Amen. हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड सभी को। आमेन। तो आइए हम हमारे विषय में तुरंत जाते हैं। और हमारा विषय का नाम है, जिसमें मैंने आपको पहले बताया था, विश्वास स्वर्ग का चलन। आमेन। और आज हम देखने वाले हैं मुद्दा क्रमांक 4। अब तक हमने 3 मुद्दों को देखा है। सबसे पहला था विश्वास क्या है, उसके बाद देखा था खुदा और विश्वास, मीन्स मसलन खुदा के लिए विश्वास क्या होता है, और हमने पिछली बार देखा था विश्वास के लिए वातावरण, द एटमॉस्फेयर फॉर फेथ। विश्वास के लिए, विश्वास का वातावरण नहीं, लेकिन विश्वास के लिए कौन सा वातावरण जरूरी होता है ताकि विश्वास पनपे, विश्वास बढ़े। आमेन। तो अभी हमने पिछली बार देखा था। आज हम देखने वाले हैं मुद्दा क्रमांक 4, और वो है हर जरूरत का एक विश्वास होता है। फिर से एक बार दोहरा रहा हूं, हर जरूरत का एक विश्वास होता है। प्रत्येक गरजे मागे एक विश्वास असतो। प्रत्येक गरजेसाठी मागे नाही, सॉरी, प्रत्येक गरजेसाठी विश्वास असतो। आमेन। तर आज आपण हा विषय पाहणार आहोत आणि हे पाहणार आहोत की खरं हे आहे का, म्हणजे खरंच आहे का की प्रत्येक गरजे मागे विश्वास आहे। ओके। हम ये देखने वाले कि सच में ऐसा होता है क्या कि हर एक ज़रूरत के पीछे, हर एक समस्या के पीछे, हर एक मुश्किल के पीछे, हर एक तूफान के पीछे एक विश्वास है, लगता है, या फिर विश्वास होता है। आमेन। आइए हम खोलेंगे मत्ती रचित सुसमाचार, इसका 17वां अध्याय और वचन 14 से वचन 21। And when they were, Matthew 17, everybody, Matthew 17 and verses 14 to verse 21. And when they were come to the multitude, there came to him a certain man, kneeling down to him and saying, Lord, have mercy on my son, for he is a lunatic and sore vexed, for oftentimes he falleth into the fire and often into the water. And I brought him to thy disciples, and they could not cure him. Yes, they could not cure him. वो उसे चंगा नहीं कर सके। Amen. वचन 17. Then Jesus answered and said, O faithless and perverse generation, how long shall I be with you? How long shall I suffer you? Bring him hither to me. Amen. Verse 18, and Jesus rebuked the devil, and he departed out of him, and the child was cured from that very hour. Hallelujah. Then came the disciples to Jesus apart and said, why could not we cast him out? Amen. परमेश्वर के लोगों, यहां पर हम थोड़ा रुक जाते, ठहर जाते। यहां पर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जब इस धरती पे था, तब एक पिता अपने पुत्र को लेके आता है और वो कहता है कि मेरा पुत्र जो है वो पागल है, और
उसे एक दुष्ट आत्मा ने पीड़ित किया है और वो दुष्ट आत्मा उसको कभी-कभी अग्नि में फेंक देती है या फिर पानी में फेंक देती है, उसको मारने की कोशिश करती है। और तब प्रभु यीशु मसीह वो प्रभु यीशु मसीह से कहता है कि तुम्हारे चेलों के पास में जब तुम्हारे चेलों के पास जब मैं इसे ले आया, तो वो उसे चंगा नहीं कर सके। प्रभु यीशु मसीह कहता है कि ये विश्वासहीन और विकृत ऐसी पीढ़ी हो तुम, उसके कहता है। और वो कहता है कि मैं तुम्हारे साथ कितने कितने दिन और रहने वाला हूँ। तो प्रभु यीशु मसीह वो कहता है कि प्रभु यीशु मसीह तुरंत उसके बेटे को उस दुष्ट आत्मा को निकलने की आज्ञा देता है और दुष्ट आत्मा चला जाता है। तब यीशु मसीह के चेले उसके पास आते हैं और उससे पूछते हैं प्राइवेटली, अकेले में, कि हम इस दुष्ट आत्मा को क्यों नहीं निकाल सके। आमीन। उनका सवाल वाजिब है, तो जायज सवाल है उनका। तो यीशु मसीह उनसे यह कहता है, एंड जीसस सेड अनटू देम, बिकॉज ऑफ योर अनबिलीफ, तुम्हारे अविश्वास की वजह से। अभी सुनिए बात ध्यान से। इसके पहले यीशु मसीह ने उनके सारे चेलों को अधिकार दिया था दुष्ट आत्माओं को निकालने के लिए। हम उसे देखते हैं उसी किताब मत्ती के ही किताब में, और वो भी 10वें अध्याय में एक में हम पढ़ेंगे। मत्ती मैथ्यू चैप्टर 10, let us read. And when he had called unto him his 12 disciples, he gave them power against unclean spirits to cast them out. Amen. And to heal all manner of sicknesses and all manner of disease. Amen. तो प्रभु यीशु मसीह ने उनको हर प्रकार की दुष्ट आत्माओं को निकालने के लिए और हर प्रकार के बीमारियों से छुटकारा देने का सामर्थ उसके चेलों को उसने दे दिया था। लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ पर ये इसे नहीं निकाल पाए। तो प्रभु यीशु मसीह कहता है, बिकॉज ऑफ योर अनबिलीफ, तुम्हारे अविश्वास के कारण की वजह से तुम इसे निकाल नहीं सके। अब मेरा सवाल यह है कि अगर प्रभु यीशु मसीह ने उनको सामर्थ दे रखा था, तो वो उसे क्यों निकाल नहीं सके। तो आगे प्रभु यीशु मसीह कहता है वचन 21 में, हाउ बी इट दिस काइंड गोeth नॉट आउट बट बाय प्रेयर एंड फास्टिंग। आमेन। मीन्स इस प्रकार की जो दुष्ट आत्माएं है, इस विशेष प्रकार की दुष्ट आत्माएं, ये दुआ और उपास और दुआ नहीं, दुआ और उपास के थ्रू ही, उसके द्वारा ही निकलते हैं। अभी सवाल यहां पर यह आता है कि उपास और दुआ में जाने के बाद में होता क्या है। हमें ये जानना बहुत जरूरी है परमेश्वर के लोगों, कि उपास और दुआ के बाद में क्या होता है। तो जब भी कभी हम हमारे जिंदगी में कोई भी समस्या, कोई भी जरूरत का सामना करते हैं, तो हर जरूरत के पीछे एक अलग विश्वास की जरूरत होती है। हर जरूरत का एक विश्वास होता है। मसलन यहां पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह के चेले जो थे, उन्होंने बहुतांश दुष्ट आत्माओं को निकाला था, बहुतांश बीमार लोगों को चंगा किया था। लेकिन ये जब एक विशेष प्रकार का दुष्ट आत्मा उनके सामने आता है, तो वो उसे निकाल नहीं सके। क्यों? क्योंकि उसके लिए जो विश्वास चाहिए था उनके पास वो नहीं था। येस, दैट्स राइट, यू हर्ड मी राइट। त्या प्रकारच्या दुष्टात्माला काढण्यासाठी जो विश्वास हवा होता, तो शिष्यांकडे नव्हता। म्हणून प्रभू त्यांना काय म्हणतो, बिकॉज ऑफ योर अनबिलीफ, तुमच्या अविश्वासामुळे। ओके, सो हमें ये बात समझनी बहुत अनिवार्य है कि जब कभी हम हमारे किसी भी समस्या का सामना करते हैं, तो समस्या हमारे जिंदगी में क्यों आती है, हमें एक नए आयाम में, एक नए लेवल में ले जाने के लिए आती है। हे कभी मत भूलिएगा, आपल्याला एका नवीन स्तरावरती घेऊन जाण्यासाठी जीवनामध्ये आपल्या समस्या येतात। ये कभी मत भूलो इस बात को। Always remember this. Every problem cometh in our life to take us higher in the glory of God. From faith to faith and glory to glory. विश्वास से विश्वास तक और महिमा से महिमा तक ले जाने के लिए हमारी जिंदगी में समस्या आती है। तो
हर समस्या के पीछे एक विश्वास होता है। मसलन अगर मुझे ये जार खरीदना है, तो इस जार की कीमत अलग है, ओके? अगर मुझे दूसरा कोई जार खरीदना होगा, तो उसकी कीमत अलग है। फिर वैसे ही अगर मुझे ये तौलिया खरीदना है, तो उसकी कीमत अलग है। फिर अगर मुझे कोई दूसरा तौलिया खरीदना है, अलग टाइप का, तो उसकी कीमत अलग रहेगी। आमेन। वैसे ही हर एक समस्या, जिस लेवल से वो समस्या आती है, मैं इसे फिर से दोहरा रहा हूं, जिस लेवल से वो समस्या आती है, उस लेवल का विश्वास अगर आपके पास हो, तो आप उस समस्या का हल निकाल सकते हो दुआ के द्वारा। आप आज्ञा दोगे और चमत्कार होगा। आप आज्ञा दोगे और पर्वत हिलेगा। उस लेवल का, सिर्फ उस स्तर का, हाँ, सिर्फ उस स्तर का। अगर उछले स्तर का कोई पर्वत आपके सामने आके खड़ा हो, कोई समस्या आपके सामने आके खड़ी हो, कोई जरूरत आपके सामने आके खड़ी हो, तो आपको उस लेवल में जाना पड़ेगा। आमेन। आपको आपका स्तर बदलना पड़ेगा। आपको एक ऊंचे स्तर में जाना पड़ेगा। और वहां पर आप कैसे जाओगे? और सुनियो, सिर्फ जाना ही नहीं, लेकिन उस स्तर का जो विश्वास है, उसको हमें हासिल करना पड़ेगा, ताकि उस स्तर में जितने भी समस्याएं हैं, जरूरत है हमारी जिंदगी में, वो सारा का अधिकार तुम्हें मिलेगा, वो विश्वास प्राप्त करने के बाद। आमेन। तो इस स्तर में हम जाएंगे कैसे? प्रभु यीशु मसीह ने जवाब दिया है, प्रार्थना, दुआ और उपवास के द्वारा। अभी सुनिएगा ध्यान से। जब हम उपवास करते हैं तो क्या होता है, ये हमें समझना बहुत जरूरी है। बहुतांश लोग उपवास करते हैं, लेकिन उनको ये बात समझ में आती नहीं है कि उपवास करना कैसा है। तो उपवास में होता क्या है, हमें ये समझना बहुत जरूरी होता है। देखो, जब कभी भी हम परमेश्वर में चलते हैं ना, तो परमेश्वर में चलते हुए हमारे साथ हमारे शरीर का जो स्वभाव है, जो हमने बचपन से हमारे अंदर आया है, जन्म से हमारे अंदर आया है, और वो है हमारे माँ बाप से जो पाप का जो सिग्नेचर है, हस्ताक्षर है, वो हमारे डीएनए में आया है। और पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे जितने भी पुरखे हो गए हैं, उन पुरखों से जो भी पाप का उन्होंने जो भी पाप किया है, वो सब हमारे खून में आज दौड़ रहा है। तो मसलन अगर मेरे पूर्वज जो थे, अगर मेरे पूर्वज राजा महाराजा के ओर से थे, और समझो अगर वो बहुत ही क्रूर थे, उन्होंने लोगों की हत्याएं की है, तो वो जो भी उन्होंने काम किए हैं, वो सारा का सारा डीएनए मेरे अंदर आज दौड़ रहा है, उन सारे पूर्वजों का। और वो जो डीएनए है, वो है पाप में फितरत। ओके। और ये जो फितरत है, ये हमेशा मेरे आत्मा के मनुष्य के विरोध में आएगी, हमेशा आएगी। और हमेशा मेरे आत्मिक जो मेरा जो आत्मिक चलना है, चाल चलन है, उसके खिलाफ में या फिर उसके विरोध में खड़ी हो जाएगी। और उसके वजह से मैं हमेशा परमेश्वर के नज़रों में कोई ना कोई गलती ज़रूर करूँगा। तो परमेश्वर के लोगों, हमें इस बात का इल्म होना बहुत ज़रूरी है कि जब हम उपवास में जाते हैं, तब हम देखो, उपवास में जाना सिर्फ काफी नहीं है। दुआ और उपवास, ये दोनों भी साथ साथ चलना चाहिए। अगर आप सिर्फ उपवास करते हो तो कुछ फायदा नहीं है। आप जब जब कभी भी अगर आप उपवास करते हो, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। दो तरह के उपवास होते हैं। एक है कि जब मैं निर्णय लेके आज मैं भोजन को वर्ज करूंगा, या फिर भोजन से दूर रहूंगा, और दिन भर उस समय में मैं दुआ करूंगा। यह है पहला प्रकार का। दूसरा प्रकार का जो होता है, जो आत्मा के द्वारा संचालित होता है। मसलन अगर मैं दुआ में बैठा हूं, तो मुझे भूख ही नहीं लग रही है, ओके, और वो ऑटोमेटिकली उपवास हो जाता है। समझ में आया? तो यही है कि जब कभी भी मैं दुआ में बैठता हूं, मैं इतना खो जाता हूं कि मुझे भोजन का ध्यान नहीं रहता है। ओके, मुझे भूख नहीं लगती है। क्यों? क्योंकि मैं दुआ में, मुझे संचालित किया जा रहा है पवित्र आत्मा के द्वारा। तो जब मैं ऐसी स्थिति में आता हूं, तब मेरा जो शरीर है, मेरे शरीर की जो लालसाएं है, वासनाएं है, वो मरने लगती है।
आमेन। तो जब भी कभी मैं इस मेरे शरीर के लालसाओं को जितना ज़्यादा मैं आत्मा के द्वारा संचालित दुआ में बैठूंगा, मैं फिर से कह रहा हूं, जितना ज्यादा मैं आत्मा के द्वारा संचालित दुआ में बैठूंगा, मराठी सांगतो, जेवढं जास्ती मी आत्म्याद्वारे चालवलेल्या प्रार्थनेत बसेल, जेवढं जास्ती मी आत्म्याद्वारे चालवलेली प्रार्थना त्याच्यात मी जेव्हा प्रार्थनेत बसेल, तेवढं जास्ती माझा देह ठार मारला जाईल। ओके, उतना ही ज्यादा मेरे शरीर की जो लालसा है वो मारी जाएगी पवित्र आत्मा के द्वारा। इस बात को ध्यान रखिए। तो जब मैं ये करता हूं ना, तब मैं विश्वास के एक स्तर से दूसरे स्तर में पवित्र आत्मा मुझे ले जाता है, मुझे अशर करता है, मुझे ले जाता है, मेरी अगुवाई करता है, विश्वास से विश्वास तक, विश्वास से विश्वास तक। ओके, अभी बात ध्यान से सुनिए। तो ये जो प्रक्रिया है, ये होना बहुत जरूरी है हर विश्वासी के जिंदगी में। ही जी प्रक्रिया आहे ना, ही प्रत्येक विश्वासणाऱ्याच्या जीवनामध्ये होणं अतिशय अगत्याचं आहे, अतिशय महत्वाचं आहे। कोणती प्रक्रिया? आत्म्याद्वारे प्रार्थनेत संचालित केलेलं जाणं, आत्म्याद्वारे प्रार्थनेमध्ये चालवलं जाणं, हे लक्षात ठेवा। जब भी कभी आप दुआ करते हो, आपके दुआ में पवित्र आत्मा की उपस्थिति होना अनिवार्य है। पवित्र आत्मा आना ही चाहिए, पवित्र आत्मा ने आपको छूना ही चाहिए। मेरे पिछले संडे का मैसेज आप देखिए, अभिषेक के बाद, अमेन, इस मैसेज को देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। आफ्टर द अनॉइंटिंग, प्लीज, हमें अगर पवित्र आत्मा छूता है, तो जब कभी हम दुआ में बैठते हैं तो पवित्र आत्मा ने हमें छूना ही चाहिए, हमें भरना ही चाहिए, हमें हमारे शरीर के लालसाओं को मारना ही चाहिए। और ये होना अनिवार्य है, ये ज़रूरी है। अगर ये नहीं हो रहा है तुम्हारे दुआ में, भले आप पासबान हो, भले आप नबी हो, भले आप सुसमाचार बताने वाले हो, भले आप टीचर हो, भले आप अपोस्टल हो, आप कोई भी हो, अगर आपके दुआ में पवित्र आत्मा का दीप जला नहीं जाता, वो 7 दीप स्तंभ जलाए नहीं जाते, इसका मतलब पवित्र आत्मा आपके दुआ में आया नहीं, आपकी दुआ शुरू ही नहीं हुई है। ये बात को समझिएगा। आमेन। अंडरस्टैंड दिस रियलिटी। If the 7 candlesticks are not lit in your prayer time, that means if the Holy Ghost does not come in your prayer time, that means your prayer is not begun. आपकी दुआ शुरू ही नहीं हुई। भले आप अन्य भाषा में दुआ करते होंगे, लेकिन वो अन्य भाषा को पवित्र आत्मा का स्पर्श चाहिए, नई भाषा फूटनी चाहिए, नई भाषा आनी चाहिए। आपको अभिषेक महसूस होना अनिवार्य है, आपको नया अभिषेक आना चाहिए। अगर वो फ्लो नहीं है, अगर वो कनेक्टिविटी नहीं है, इसका मतलब आपकी दुआ शुरू नहीं हुई। भले आपने 3 घंटा दुआ की होगी, लेकिन वो सूखी की है, पवित्र आत्मा वहां पर उपस्थित नहीं था। पवित्र आत्मा के हिसाब से आपकी दुआ शुरू ही नहीं हुई है। ये कड़वा सत्य है, इसे आप स्वीकारेंगे आज पृथ्वी पे तो आपके लिए भलाई होगी। क्यों? क्योंकि आप सुधरोगे और परमेश्वर के साथ ठीक से जुड़ोगे और पवित्र आत्मा आपके जिंदगी में कार्य कर सकेगा। देखिएगा, समझिए, हमारी समस्या जो होती है ना हमारे जिंदगी में, वो हमें स्वर्ग के लिए तैयार करती है। ये हम देखने वाले अगले बाइबल स्टडी में, अगर परमेश्वर की इच्छा रही, अगर इस बार नहीं तो अगले बाइबल स्टडी में देखेंगे। लेकिन बात को सुनिए, तो विश्वास जो होता है ना, विश्वास से विश्वास तक, ये पवित्र आत्मा के द्वारा संचालित, पवित्र आत्मा के द्वारा संचालित जो दुआ होती है, वो हमें उस स्तर में लेके जाती है। इस बात को भूलिएगा नहीं। तो हर एक समस्या का एक विश्वास होता है। तो जब भी कभी हम दुआ में बैठते हैं, उस समस्या को सॉल्व करने के लिए परमेश्वर हमें उस समस्या के लिए एक विश्वास देता है, और वो विश्वास उस स्तर पे जितनी भी समस्या है उसके लिए काफी होता है। आमेन। फिर अगले ऊंचे स्तर से अगर कोई समस्या आती है, इसका मतलब मुझे प्रोग्रेस का टाइम आया, मेरा प्रमोशन का टाइम आया है। पवित्र आत्मा मुझे विश्वास के अगले स्तर में लेके जा रहा है, और फिर उस स्तर में जितनी भी समस्याएं हैं, वो सारे के सारे उस विश्वास के द्वारा हल होगी। आमेन। फिर वो बीमारी हो, कोई जरूरत हो, या फिर कोई तूफान हो। आमेन।
तो हर एक विश्वास का, हर एक समस्या का विश्वास होता है। आमीन। ओके, लेट्स गो फर्दर नाउ। अभी प्रश्न ये है कि मैं इस विश्वास को प्राप्त कैसे करूं? हाउ विल आई रिसीव दिस फेथ? ओके, आइए हम पढ़ेंगे रोमियो की पत्री इसका 10वां अध्याय वचन 17। Romans chapter 10 verse 17. So then faith cometh by hearing and hearing by the word of God. Okay, मैं फिर से कह रहा हूं इस वचन को इंग्लिश में। Romans 10 verse 17. So then faith cometh by hearing and hearing by the word of God. मैंने हिंदी इंग्लिश में बोला था, मैं फिर से कह रहा हूँ, अभी मैं हिंदी में कह रहा हूँ। विश्वास आता है और वो वचन सुनने के द्वारा आता है। ओके, अभी इस बात को समझिएगा। मैं इंग्लिश में कहता हूँ फिर से एक बार। सो देन फेथ कमिथ बाय हियरिंग एंड हियरिंग बाय द वर्ड ऑफ गॉड। अगर मैं थोड़ा यहाँ पर उसका इक्वेशन लगाता हूँ, अगर वर्ड ऑफ गॉड को मैं अगर यीशु मसीह कहता हूँ, तो अभी मैं वर्ड ऑफ गॉड जहाँ पर लिखा गया है वर्ड ऑफ गॉड, वहाँ पर मैं यीशु मसीह यीशु करके कहता हूँ। ओके, तभी हम पढ़ेंगे। सो देन फेथ कमिथ बाय हियरिंग एंड हियरिंग बाय जीसस। हालेलुया। तो इसका मतलब ये हो गया कि मुझे यीशु मसीह के सामने जाके बैठना है, उसके मुंह से आने वाले अल्फाजों को सुनने के लिए, ताकि मुझे विश्वास प्राप्त हो। आमेन। आइए हम आगे बढ़ते। मत्ती 4:4, Matthew 4:4. But he answered and said, It is written, Man shall not live by bread alone, but by every word that proceeded out of the mouth of God. आमेन। परमेश्वर, इंसान केवल रोटी से नहीं, लेकिन परमेश्वर के मुख से निकलने वाले हर एक शब्द से जिएगा। हालेलुया। आमेन, 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 आमेन। तो परमेश्वर के लोगों, कम ऑन, थिंक अबाउट इट, सोचिए इस बात को। अगर मुझे विश्वास प्राप्त करना है, तो मुझे परमेश्वर के मुंह के सामने जाके बैठना होगा। आमेन। और ये सिर्फ मुमकिन है दुआ में, पवित्र आत्मा के द्वारा संचालित दुआ में। जहां पर पवित्र आत्मा मेरा संचालन करता है, उसके उपस्थिति में, उसके मुंह के क्षेत्र में। इस बात को कभी ना भूलिएगा, प्लीज समझिए इस बात को। अगर मुझे विश्वास चाहिए, तो मुझे विश्वास प्राप्त होता है, मुझे विश्वास प्राप्त होता है इस वचन के द्वारा। यस, लेकिन अगर मुझे एक्टिव फेथ चाहिए, एक्टिव फेथ, मेरे समस्या के ऊपर विजय प्राप्त करने का, जो मेरे जिंदगी में समस्या आई है, जो बीमारी आई है, जो भूचाल आया है, जो तूफान आया है, जो भवंडर आया है, जो भूकंप आया है, जो ज्वालामुखी फूटा है, अगर मुझे उस पर्वत को हटाना है जो मेरे सामने खड़ा है, तो मुझे परमेश्वर के मुख से निकलने वाला जो शब्द है वो सुनना होगा, जो निकला हुआ नहीं, निकलने वाला। बहुतांश लोगों को क्या लगता है कि बाइबल पढ़ने से विश्वास बढ़ता है। नहीं, बाइबल पढ़ने से विश्वास बरकरार रहता है। बाइबल वाचून विश्वास हा नीट राहतो, पण विश्वास वाढतो, विश्वास येतो देवाच्या मुखातून निघणाऱ्या शब्दाला ऐकून। कळलं का? विश्वास वाढतो किंवा विश्वास येतो देवाच्या मुखातून निघणाऱ्या शब्दाला ऐकून, हिअरिंग। पुष्कळांना काय वाटतं की मी हे बायबल जर का मोठ्याने वाचलं म्हणजे मला विश्वास येईल। नहीं, नहीं। हे दिस इज ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। लोगों को एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। लोगों को क्या लगता है कि अगर मैं बाइबल को जोर जोर से पढ़ूंगा तो मुझे विश्वास आएगा। नहीं, क्योंकि मैं फिर सुनूंगा। नहीं, आपको परमेश्वर के मुख
के द्वारा, मुख से जो भी अल्फाज, जो भी शब्द आता है वो आपको सुनना है। और ये कहाँ होता है? दुआ में, जो पवित्र आत्मा के द्वारा संचालित होती है। मतलब मेरा कहने का मतलब यह है कि जब पवित्र आत्मा आपको परमेश्वर के सामने जाके रखता है, बिठाता है, और वहां से जो भी शब्द आएगा परमेश्वर के मुंह के द्वारा, वो आपके अंदर विश्वास लाएगा। आमेन, 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 आमेन। आइए हम पढ़ते हैं नीति वचन 2 अध्याय वचन 6, Proverbs chapter 2 and verse 6. For the Lord giveth wisdom, out of his mouth cometh knowledge and understanding. आमेन। परमेश्वर के मुंह से आता है ज्ञान और समझदारी। आमेन, आमेन। तो परमेश्वर के लोगों, इस बात को हमें समझना बहुत जरूरी है कि ये जो विश्वास है ये सिर्फ दुआ और पवित्र आत्मा के द्वारा संचालित दुआ के द्वारा ही आता है। तो हमें इस बात को समझना जरूरी होता है कि अगर मैं पवित्र आत्मा द्वारा संचालित दुआ में बैठूंगा तो ही मुझे विश्वास प्राप्त होगा, नहीं तो नहीं होने वाला। Yes, your prayer has to be adorned with the anointing of the Holy Spirit. Hallelujah. Your prayer has to be marinated in the anointing of the Holy Spirit. पवित्र आत्म्याच्या सामर्थ्याद्वारे, पवित्र आत्म्याच्या अभिषेकाने तुमची प्रार्थना मुरलेली असावी। मुरलेली, बोला मोठ्यानी, मुरलेली असावी। येस, तुमच्या प्रार्थनेमध्ये पवित्र आत्म्याचा अभिषेक पूर्णपणे संचारलेला असावा, मगच पवित्र आत्मा तुम्हाला देवाच्या मुखाच्या समोर घेऊन जाईल। फिर तभी पवित्र आत्मा आपको परमेश्वर के मुख के सामने लेके जाएगा। दैट इज हाईली इंपेरेटिव। ये समझो इस बात को, समझिए इस बात को। पवित्र आत्मा का अभिषेक हर एक बात में होना जरूरी है। जब मैं प्रीचिंग करता हूं, जब कोई भी सेवक अगर सेवकाई कर रहा है, तो उसके मुख से निकलने वाले हर एक अल्फाज के पीछे पवित्र आत्मा का सामर्थ, पवित्र आत्मा का अभिषेक का मैरिनेशन, पवित्र आत्मा का अभिषेक का जो पावर है वो आपको महसूस होना चाहिए। तभी कार्य होगा, तभी कार्य होगा। आपको याद नहीं है क्या उत्पत्ति के पहले अध्याय और वचन 1 और 2 में कि खुद पिता ने भी, खुद परमेश्वर ने कुछ भी बोलने के पहले पवित्र आत्मा ने पूरे भूमंडल, पूरे पृथ्वी पर पूरा के पूरी की पृथ्वी भर ली थी। और फिर परमेश्वर ने कहा लेट देयर बी लाइट, प्रकाश हो, और प्रकाश निर्माण हो गया। अगर हमें हमारे जिंदगी में कुछ भी कार्य होना आपको अगर जरूरत है तो सिर्फ ऐसे ही बोल के नहीं होने वाला, नहीं होने वाला। सिर्फ ऐसे ही लाठी मार के नहीं होने वाला। सिर्फ ऐसे ही जोर से चिल्ला के हीरो की दीवारें गिरने नहीं वाली है। हमें वहां पर पवित्र आत्मा का सामर्थ्य की उपलब्धि होना जरुरी है। पवित्र आत्मा तिथं असणं, उपस्थित असणं अतिशय महत्वाचं आहे। तुमच्या प्रार्थनेमध्ये पवित्र आत्म्याचं, तुमची प्रार्थना पवित्र आत्म्याच्या सामर्थ्याखाली, अभिषेकाखाली मुरलेली असणं गरजेची आहे। मगच तुम्हाला हा विश्वास मिळेल, कारण पवित्र आत्मा तुम्हाला देवाच्या मुखाच्या समोर घेऊन जाईल, तिथं बसवेल, आणि तिथं तुम्हाला देवाच्या मुखातून निघणाऱ्या शब्दाद्वारे तुम्हाला विश्वास प्राप्त होईल। हालेलुया. So people of God, understand the value of the anointing in your prayer life. Every problem comes for only one purpose, to take you higher in the levels of faith and the levels of glory. Hallelujah. हर एक समस्या आपके जिंदगी में सिर्फ एक कारण की वजह से आती है, आपको आत्मा के स्तरों में, आपको विश्वास से विश्वास तक और महिमा से महिमा तक लेके जाने के लिए। हालेलुया. हमें परमेश्वर के मन में जो कारण है कि समस्या वो क्यों आने देता है, वो इसलिए आने देता है ताकि हमें वो आत्मा के नए स्तर में, विश्वास के नए स्तर में, अभिषेक के नए स्तर में और महिमा के नए स्तर में लेके जाए। हालेलुया. तो परमेश्वर के लोगों,
सोचिएगा इस बात को जरा, आज सोचिए, थिंक अबाउट इट। कितने तो बार हमने हमारी समस्या को देख के मुंह फेर लिया है, कितने तो बार हमारी समस्या की वजह से आज हम नाराज है, उदास है, निराश है। क्यों? क्योंकि हमारी समस्या का हल नहीं मिल रहा है। और हमारा जो अवसर होता है, मैं क्या कह रहा हूं, अवसर, विश्वास से विश्वास तक जाने के लिए, विश्वास प्राप्त करके महिमा से महिमा में जाने के लिए जो अवसर परमेश्वर हमें देता है, समस्या दे के, तूफानों को भेज के हम उसे किसी और के हाथ में देते हैं और ये बोलते हुए हमारे लिए दुआ करो, ये गलत है। दिस इज अ वेरी बैड हैबिट। बाइबल में लिखा है एक दूसरे के लिए दुआ करो, ये नहीं लिखा है कि सबको बोलो मेरे लिए दुआ करो। प्लीज बाइबल ठीक से पढ़ो यार, ठीक से पढ़ो प्लीज। ये गंदी आदत बहुत सारे सेवक लोगों ने लगा के रखी है मसीह के शरीर को। ये एक दीमक है, दीमक जो मसीह के दुल्हन को खा रहा है, खराब कर रहा है। ये दीमक है, मेरे लिए दुआ करो, ये दीमक है। और ये इस दीमक के वजह से बहुतांश लोग आज नरक में गए हैं। बहुतांश लोगों का नाश हो गया है। क्यों? क्योंकि उन्होंने कभी भी उनके जिंदगी में जो भी अवसर परमेश्वर ने भेजे उनका विश्वास बढ़ाने के लिए, उन्होंने उस अवसरों का इस्तेमाल ही नहीं किया। हमेशा दूसरे को कहे मेरे लिए दुआ करो, मेरे लिए दुआ करो, मेरे लिए। किधर लिखा है बाइबल में? किधर लिखा है? इब्राहिम ने खुद होके लूट के लिए दुआ की। लूट ने नहीं मांगा इब्राहिम को कि मेरे लिए दुआ कर। कम ऑन, खुद पौलुस कहता है एक दूसरे के लिए दुआ करो। ये नहीं बोला है कि तुम दूसरे को कहो मेरे लिए दुआ करो। ये गंदी आदत एक दीमक है जो मसीह के शरीर को खा रहा है। क्यों? हम हमारे सामने जो, अगर यीशु मसीह चल के आ रहा है पानी के ऊपर, अगर हम तूफान में से जा रहे हैं और यीशु मसीह अगर हमें एक दिखा रहा है कि कैसे मुझे उस तूफान के ऊपर विजय प्राप्त करना है, उस तूफान के पानी, समुद्री पानी पे चल के आते हुए, और मैं किसी और को भेजता हूं मेरे अलावा, मेरे जगह पे, कम ऑन, इससे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं रहेगा। देखो, पतरस ने ना मती को, ना मरकुस को, ना किसी और चेले को, ना उसके भाई को भेजा पानी पे चलने के लिए, उसके लिए नहीं। वो खुद बोला, प्रभु जी अगर आप हो तो मुझे कहो पानी में तुम्हारी ओर चल के आने के लिए, पानी पे तुम्हारी ओर चल के आने के लिए। और प्रभु यीशु मसीह ने भी उसको ये नहीं कहा कि नहीं तू मत चल, नथानियल को भेज, मरकुस को भेज, मत्ती को भेज, नहीं। आमीन। प्रभु यीशु मसीह ने बोला कम, और वो उतरा नीचे। इसका मतलब प्रभु यीशु मसीह की ये मर्जी थी कि 12 के 12 चेले उस पानी पे चले। आमीन। यस, इट वाज द विल ऑफ गॉड that all 12 of the disciples copy him, कि उसकी नकल करे। ये प्रभु यीशु मसीह की मंशा थी कि प्रभु यीशु मसीह के चेले उसके समान बर्ताव करे। ये बात अगर हमें समझ में आती है तो क्यों हम हमारे पानी में चलने के मौके को किसी और को दे देते हैं? क्यों करते हैं? ये आदत हमें कहां से लगी है? किसने लगाई ये गंदी आदत? कौन है ये जो परमेश्वर के लोगों को कहता है तुम परमेश्वर से जुड़ो मत, तुम मत जुड़ो, मैं जुड़ता हूं तुम्हारे जगह पे? ये कौन ऐसी गंदी आदत लगा रहा है? शैतान के अलावा कोई नहीं हो सकता जो परमेश्वर के लोगों को कहता है कि अगर परमेश्वर ने उसके वचन में लिखा है, हम पढ़ेंगे 2 क्रॉनिकल्स, दूसरे इतिहास चैप्टर 7 एंड वर्स 14, दूसरे इतिहास 7वां अध्याय वचन 14। इफ माई पीपल विच आर कॉल्ड बाय माई नेम शैल हम्बल देमसेल्व्स, क्या लिखा है यहां पर? अगर मेरे लोग जो मेरे नाम से बुलाए गए हैं, क्रिश्चियंस, अगर वो खुद को नम्र करेंगे, दूसरे को नहीं। अरे मेरे जगह पे तू नम्र हो जा, ये क्या है? ये कौन सा लॉजिक है? ये कौन सा लॉजिक है? अरे हेलो, मेरे लिए प्रेयर करो, मैं आपको पैसा भेज रहा हूं, ये कौन सा लॉजिक है? ये कहां से आया है?
ये सेवकाई, ये जो शिक्षण है, ये जो क्या टीचिंग है, ये कहां से आई है? हु हैज टॉट दिस? हु? हेलो, हाँ, मेरी माँ बीमार है, हाँ, मैं आपको 10,000 भेज रहा हूं, मेरे लिए दुआ करो। ये क्या है? ये कौन से बाइबल में से आया है ये? कौन से? याईर के घर में भी जब याईर खुद अपने अपने बेटी को बचाने के लिए खुद आया। कमाल है। सिर्फ यहां पर हम देखते हैं कि कुछ चंद लोग जो है, मसलन पतरस की जो सास थी, ओके, लेकिन खुद परमेश्वर मसीह उसके घर पे, उसके मीन्स उसके घर पे जाने के बाद में यीशु मसीह ने उसको चंगाई दी है। लेकिन कहां पर ये लिखा है कि तुम किसी और को भेजो तुम्हारी ओर से? कहां लिखा है ये? कहां से आता है? इस मिनिस्ट्री को फोन करो, उस मिनिस्ट्री को फोन करो। आपको ये मालूम नहीं है कि आपके जो समस्याएं है, आपको स्वर्ग में आपका सीट रिजर्व करते हैं। आइए हम उस लास्ट पॉइंट को भी देखते हैं आज, और मैं इस बाइबल स्टडी को खत्म कर रहा हूँ, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ओके, तो बात को समझिए। मैं उसके पहले मैं एक पॉइंट कहता हूँ। हिब्रूज इसका इब्रानी की पत्री इसका 10वां अध्याय और वचन 38:38। Now the just shall live by faith. But if any man draw back, my soul shall have no pleasure in him. Now the just shall live by faith. धर्मी तो विश्वास से जिएगा। हालेलुया। इस बात को हमें समझना अनिवार्य है कि अगर मुझे जीना है मसीह में, तो मुझे विश्वास के द्वारा ही जीना होगा। आमीन। और विश्वास आता है परमेश्वर के मुख के द्वारा। मुख के द्वारा परमेश्वर विश्वास आता है। और ये विश्वास प्राप्त करने के लिए मैं क्यों जाता हूं? क्योंकि मेरे जिंदगी में समस्या आती है, और हर एक समस्या का स्तर के विश्वास अलग अलग होता है। तो आपके समस्याओं के, अभी मेरा लास्ट पॉइंट है, ये है फेथ एंड माय रिलेशनशिप विथ इटर्नल लाइफ। ओके, क्या? विश्वास और मेरा नाता सार्वकालिक जीवन के साथ। क्या बोला मैंने? विश्वास और मेरा नाता सार्वकालिक जीवन के साथ। उसके पहले मैं एक पॉइंट कह रहा हूं आपको। गेटिंग फेथ इज लिविंग इन गॉड। विश्वास प्राप्त करना, मसलन इसका मतलब है परमेश्वर में जिंदा रहना। मैं फिर से कह रहा हूं, विश्वास प्राप्त करना इसका मतलब परमेश्वर में जिंदा रहना। अगर मैं हर दिन के लिए, हर समस्या के लिए परमेश्वर से विश्वास नहीं प्राप्त करता हूं, इसका मतलब मैं परमेश्वर में जिंदा नहीं हूं। आज बहुतांश लोग ऐसे हैं जो परमेश्वर में सिर्फ घसीटते हुए जा रहे हैं। उनके जिंदगी में वो ऐसे ही चल रहे हैं, उनके जिंदगी में समस्या का नाच चल रहा है, तांडव चल रहा है, लेकिन समस्याओं का तांडव चल रहा है। एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक समस्या आती रही है और तांडव कर रही है, शैतान नाच रहा है। और उन सारे समस्याओं को देख के उनके दिल में कुछ भी हलचल नहीं होती है कि मैं परमेश्वर के सामने जाके नम्र हो जाऊं, खुद को तोड़ूं, सब खुद को मोड़ दूं, खुद को परमेश्वर के सामने खोल दूं और उसके मुंह से मैं विश्वास प्राप्त करूं। उनके दिल में ऐसा कुछ भी हलचल नहीं होती है। परमेश्वर के लोगों, अगर आप इस कैटेगरी में, इस श्रेणी में आते हो, तो आप बड़े धोखे में हो। आपका उद्धार, मैं कहता हूं, उसकी कोई गारंटी नहीं है। आप उद्धार में तो आए हो, लेकिन सच में आपका उद्धार होगा क्या, ये मैं आपको गारंटी नहीं दे सकता। क्यों? क्योंकि परमेश्वर में गेटिंग फेथ इज लिविंग इन गॉड। परमेश्वर से विश्वास प्राप्त करने का मतलब है परमेश्वर में जिंदा रहना। यस, ओके। अगला वाक्य में कहता हूं, नो फेथ
नो लाइफ इन गॉड। आमेन, हालेलुया। कोई विश्वास नहीं तो परमेश्वर में जीवन नहीं। मैं फिर से दोहरा रहा हूं, अगर विश्वास नहीं तो परमेश्वर में जीवन नहीं। तो परमेश्वर के लोगों, कमान कमान कमान, होश में आ जाओ। हमारी समस्या हमें परमेश्वर में जिंदा रखती है। हालेलुया। तो समस्या आना, भूचालों का आना, तूफानों को आना, इसको गलत नजरिए से मत देखो। अगर आपको कोई धोखा दे रहा है, अगर आपको कोई छोड़ के चला जा रहा है, अगर आपको कोई बीमारी आई है, अगर आप कोई आर्थिक समस्या में गिर पड़े हो, अगर आपकी जिंदगी में कोई चीज आपको हासिल नहीं हो रही है या फिर कोई बीमारी आई है, तो इस बात को नकारे तरीके से मत देखो, इसको पॉजिटिव तरीके से देखो, सकारे तरीके से देखो, और इसको लेके आप परमेश्वर के सामने बैठ जाओ और उस समस्या के ऊपर आप विश्वास प्राप्त करो। और जब परमेश्वर आपसे बात करेगा, आपको विश्वास प्राप्त होगा, और जब विश्वास प्राप्त होगा, आप उस समस्या को आपके पैरों तले रोन देंगे, और वो पर्वत आपके सामने एक सपाट भूमि हो जाएगा, और आप उस भूमि के ऊपर प्रभु यीशु मसीह की जय करते 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 आप आगे जाओगे, आप ऊंचे जाओगे। हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, इस बात को समझिए, परमेश्वर की योजना हमेशा हमारे अच्छे के लिए होती है, कभी भी बुरे के लिए होती ही नहीं है। अभी मैं आपके साथ में एक आपका इस विषय का लास्ट पॉइंट ले रहा हूं, और वो है फेथ एंड माय रिलेशनशिप विद इटर्नल लाइफ। आमीन। विश्वास और मेरा अनंत काल के जीवन के साथ का नाता। आमेन। आइए हम देखते हैं उत्पत्ति इसका 15वां अध्याय और वचन 1 से आगे। जेनेसिस चैप्टर 15:1-5 and verses 1 onwards. After these things the word of the Lord came unto Abram in a vision, saying, Fear not, Abram, I am thy shield and thy exceeding great reward. And Abram said, Lord, what wilt thou give me, seeing I go childless? And the steward of my house is this Eleazar of Damascus. And Abram said, Behold, to me thou hast given no seed, and Lord, one born in my house is mine heir. And behold, the word of the Lord came unto him, saying, This shall not be thine heir, but he that shall come forth out of thine own bowels shall be thine heir. Hallelujah. And he brought him forth abroad and said, Look now toward heaven and tell the stars, if thou be able to number them. And he said unto him, So shall thy seed be. And he, means Abraham, believed in the Lord. And he, that means the Lord, counted it to him for righteousness. Hallelujah. परमेश्वर के लोगों, अब इस बात को ध्यान से सुनिए। इब्राहिम के जिंदगी में एक समस्या थी, और वो समस्या ये थी कि उसे बच्चा नहीं हो रहा था। वो बड़ा बूढ़ा होता जा रहा था, और उसको ये पता था उसके मन में कि उसके शरीर में जो क्षमता है बच्चा पैदा करने की, वो खत्म होती जा रही है। और उस टेंशन के वजह से वो परमेश्वर के साथ जब बात कर रहा है, देखो परमेश्वर का वचन, उसके पास शब्द क्या आता है, देखो, Fear not, Abram, I am thy shield and thy exceeding great reward. देखो, मैं तुम्हारी ढाल हूं और तुम्हारा बहुत बड़ा प्रतिफल हूं, ये परमेश्वर उसको कहता है। लेकिन अब्राहम इससे कहता है, लॉर्ड गॉड, व्हाट विल दाउ गिव मी, सीइंग आई गो चाइल्डलेस। उसका एक प्रॉब्लम था, और वो प्रॉब्लम जो था उसका, वो इतना अर्जेंट था उसके जिंदगी में कि वो परमेश्वर से कुछ बताना चाह रहा है, कुछ कहना चाह रहा है, लेकिन वो परमेश्वर को सुनने को तैयार नहीं था। और वो कहता है, वो उसका प्रॉब्लम परमेश्वर के सामने रख देता है। देखो, हमें ये बात को समझना है, इस सीन को हमें समझना है। परमेश्वर ने उसे एक दृष्टांत दे दिया है। मीन्स इब्राहिम आत्मा के एक अंतराल में गया है जहां पर उसे दृष्टांत आया है, और वो परमेश्वर की उपस्थिति उसके सामने है, वो उस उपस्थिति में पूरी तरीके से घिर गया है। ओके, और वहां पर बैठे हुए, वहां पर खड़े होते हुए परमेश्वर उससे कह रहा है कि मैं तुझे बड़ा प्रतिफल दूंगा, ये वो सब कुछ है। और वहां पर वो कहता है कि मुझे बच्चा नहीं है। ओके, तब परमेश्वर से कहता है कि तुझे एक संतान जनेगी, और ये जो संतान होगी वही तेरा वारिस होगा। ओके, आमेन।
अभी अ, देखो कैसा है कि बच्चा आने से पहले परमेश्वर का शब्द आया। आमेन। दुआ एक ऐसी चीज होती है जो तुम्हें परमेश्वर का शब्द सुनने को उपलब्ध करती है या फिर आसानी करती है। ओके, वो भी पवित्र आत्मा के द्वारा संचालित, बिना अभिषेक के नहीं, ध्यान में रखिए। ओके, आगे तो इब्राहिम को ये शब्द आया। ओके, और फिर इब्राहिम ने उस शब्द पर विश्वास किया या फिर विश्वास रखा। तो यहां लिखा है वचन 6 में, एंड ही बिलीव्ड इन द लॉर्ड and he means Abraham believed in the Lord and the Lord counted it to him for righteousness। और इब्राहिम ने परमेश्वर पे विश्वास रखा। आमेन, विश्वास रखा। ओके, परमेश्वर के अल्फाज पे विश्वास रखा, शब्द पे विश्वास रखा, और परमेश्वर ने उसके लिए वो नीतिमत्ता या फिर न्यायपन करके ऐसा उसको बोनस दिया। मीन्स उसको उसके वजह से इब्राहिम न्यायी ठहराया गया परमेश्वर के सामने। इस आखिर के अल्फाजों को प्लीज हल्के तरीके से मत लो। न्यायी इब्राहिम ने परमेश्वर के शब्द पे विश्वास रखा, इसके वजह से इब्राहिम परमेश्वर के नज़रों में न्यायी ठहराया गया। इसका मतलब यह होता है कि जब भी कभी परमेश्वर हमें हमारी समस्याओं के लिए एक शब्द देता है और जब मैं उस शब्द पर विश्वास नहीं रखता हूं तो मैं परमेश्वर के नज़रों में अन्यायी ठहरता हूं। मैं परमेश्वर के नज़रों में एक लेवल से निचले लेवल में आके गिर जाता हूं। इसीलिए आदम और हवा को एदेन की वाटिका छोड़ के निकलनी पड़ी। क्यों? क्योंकि उन्होंने दिए गए आज्ञा के ऊपर, परमेश्वर के द्वारा दी गई आज्ञा के ऊपर अविश्वास दर्शाया। कैसे दर्शाया? वो फल खा के, आज्ञा को तोड़ के। आमेन। जब भी कभी हम परमेश्वर के आज्ञाओं का उल्लंघन करते हैं, हम परमेश्वर को ये दिखाते हैं कि हमें तुम्हारे आज्ञाओं पर विश्वास नहीं। और क्योंकि इसके मीन्स इसका मतलब ये होता है कि इनका पालन करके मेरा भला होगा, ये मुझे विश्वास नहीं है, इसलिए मैं उन्हें तोड़ता हूं। और जब हम इसकी आज्ञाओं को उल्लंघन करते हैं, जब हम तोड़ते हैं, तब हम परमेश्वर को यह दिखाते हैं कि मुझे तेरे पे या फिर तेरे आज्ञाओं पर विश्वास नहीं, और तब परमेश्वर मुझे अन्यायी ठहराता है। मेरे अवज्ञा के कारण, माझ्या अवज्ञेमुळे देव मला अन्यायी ठरवतो। लक्षात ठेवा, नीट ऐका सगळ्यांनी। जेव्हा कधी मी देवाच्या ह्या शब्दाचं उल्लंघन करतो किंवा देवाने मला जे रेमा दिलेले आहे, मी त्याच्यावरती अविश्वास देवा दाखवतो। कसा अविश्वास दाखवतो? त्याच्या शब्दाच्या विरोधात जाऊन, त्याच्या शब्दाला तोडून, अवमान्य करून जेव्हा मी काहीतरी भलतंच माझ्या शरीरामध्ये करतो, त्यावेळेस मी देवाच्या नजरेमध्ये अन्यायी असा ठरला जातो। म्हणजे मी एका गौरवी स्तरातून खालच्या गौरवी स्तरामध्ये पडतो, जसा आदम आणि हवा आले। आमेन। सो संतो, इस बात को ध्यान से सुनिए। कभी हम परमेश्वर के आज्ञा के प्रति विश्वास दर्शाते हैं, तभी हम न्यायी ठहरे जाते। ये न भूलिएगा, इब्राहिम नियम के काल में नहीं जी रहा था, वो कृपा के काल में जी रहा था। नियम मूसा के समय आया। तो इब्राहिम और हमारी स्थिति सेम है। हम दोनों भी, इब्राहिम और हम भी कृपा के काल में जी रहे हैं, ये कभी ना भूलिएगा। ओके, तो इब्राहिम ने विश्वास दर्शाया, इसलिए वो न्यायी ठहराया गया। वैसे ही हम जब परमेश्वर के इस लिखित वचन पे या फिर परमेश्वर के मुख से निकलने वाले हर एक शब्द पे हम जब विश्वास दर्शाते हैं, विश्वास दिखाते हैं, हमारे समस्याओं के लिए जब परमेश्वर में विश्वास देता है, जब हम हमारा विश्वास उन शब्दों पर
हम विश्वास दिखाते हैं तब परमेश्वर के नजरों में हम न्यायी ठहरे जाते हैं. जेव्हा कधी आपण या लिहिलेल्या शब्दावरती किंवा या आज्ञांवरती किंवा देवाने दिलेल्या रेमावरती जेव्हा आपण विश्वास दाखवतो आणि त्यानुसार करतो, त्यावेळेस आपल्याला देव त्याच्या नजरेमध्ये न्यायी ठरवतो. लक्षात ठेवा. आमेन. आणि हे विसरू नका, ही फक्त न्यायी जन स्वर्गात जातील. सिर्फ न्यायी जो लोग हैं वही स्वर्ग में जाएंगे. आमेन, आमेन, आमेन. आइए हम आगे देखते हैं. रोमियो की पत्री इसका 8वां अध्याय वचन 13. रोमन्स चैप्टर 8 एंड वर्स 13. फॉर इफ ये लिव आफ्टर द फ्लेश ये शैल डाई. यस, जब भी अगर हम शरीर के लालसाओं के अनुसार अगर हम जिएंगे, आफ्टर द फ्लैश, शरीर के लालसाओं के पीछे अगर हम जिएंगे, मीन्स अगर शरीर की लालसा मुझे कह रही है जा और सिगरेट पी, अगर मैं उसके पीछे जाऊंगा, अगर शरीर की लालसा मुझे कह रही जा दारू पी तो मैं दारू पीऊंगा. शरीर की लालसा कह रही झूठ बोल तो मैं झूठ बोलूंगा. अगर शरीर की लालसा कह रही जा वासना कर तो मैं वासना करूंगा. अगर शरीर की लालसा मुझे कह रही है जाके व्यभिचार कर तो मैं व्यभिचार करूंगा. शरीर की लालसा अगर मुझे कह रही है जा उसको गाली दे तो मैं गाली दूंगा. शरीर की लालसा अगर कह रही जा उससे नफरत कर तो नफरत करूंगा. शरीर की लालसा अगर मुझे कह रही है जा उसको खून कर मैं तो खून करूंगा. शरीर की लालसा अगर कह रही जा उसके विरोध में जाके सब जगह जाके तू उसकी विरोध में जाके सब जगह बात फैला तो और मैं वही करूंगा. शरीर की लालसा अगर मुझे कह रही है तू जा और उसके बारे में झूठ फैला, अगर मैं वही करूंगा तो मैं मरूंगा, आत्मिक स्तर पे मरूंगा और नरक में भी जाऊंगा. ये दोनों मेरी हालत हो जाएगी. मी मराठी सांगतो नीट ऐका. जर का शरीराची वासना मला म्हणते की जा दारू पी आणि मी जगा दारू पितो, जर का शरीराची वासना मला घेऊन जाते आणि मला म्हणते की चल सिगरेट पी आणि मी सिगरेट पितो, जर का शरीराची वासना जर का मला म्हणते जा व्यभिचार कर तर मी व्यभिचार करतो, जा जार कर्म करतो, जा खोटं बोलतो, जा तू ह्याचा द्वेष कर मी द्वेष करतो, जा ह्याचा मर्डर करतो मी मर्डर करतो, जा ह्याची चोरी करतो मी चोरी करतो, जा लबाडी करतो, जा चहाडी करतो. जर का मी शरीराच्या वासनेच्या मागे जगत आहे तर मी मृत्यूस पात्र आहे. म्हणजे आत्मिक आत्मिक जीवनात पण माझा मृत्यू आहे आणि नरकात पण माझा मृत्यू आहे. लक्षात ठेवा. तो परमेश्वर के लोगों, मुझे शरीर के लालसाओं के पीछे नहीं जाना है. तो मुझे किसके पीछे जाना है? यूहन्ना इसका 10वां अध्याय वचन 27. जॉन 10 verse 27. My sheep hear my voice, hallelujah, and I know them and they follow me. Amen. मुझे परमेश्वर के बाणी के पीछे चलना है. मला देवाच्या शब्दाच्या मागे जायचंय. हालेलुया. आमेन. और अभी बात ध्यान से सुनिएगा. अगर मुझे ये आदत लगी है कि मैं शरीर के लालसाओं के पीछे जा रहा हूं, प्लीज माझं नीट ऐका, प्लीज लक्ष द्या, प्लीज. जर का मला ही सवय लागलेली आहे की मी शरीराच्या वासनेच्या मागे चाललेलो आहे तर मी स्वर्गात कधीही जाणार नाही. कारण असे कार्य करणारे, गलती करास पत्राचा 5वां अध्याय लिहिलेला आहे, असे कार्य करणारे, शरीराचे कार्य करणारे हे कधी स्वर्गाचं वतन पावणार नाही. येस. तर जर का मी असे कार्य करत आहे, मी स्वर्गाचा भागीदार कधी बनणार नाही. जरी मी विश्वासणारा आहे, जरी मी बप्तिस्मा घेतलेला आहे, जरी मला पवित्रता मिळालेला आहे, जरी मी अभिषेकामध्ये करून पडतो खाली आणि अन्य भाषेत प्रार्थना करणारा व्यक्ती आहे, पण जर का मी माझ्या शरीराच्या वासनेच्या मागे जगणारा व्यक्ती असेल तर मी स्वर्गात नाही जाणार. मग मी कोणी असू द्या, मी पास्टर असू द्या, मी संदेष्टा असू द्या, मी स्वार्थिक असू द्या, मी प्रेषित असू द्या, मी प्रेरित असू द्या, मी कोणी शिक्षक असू द्या, संदेश कोणी असू द्या, मी स्वर्गात नाही जाणार. मी डॉक्टर असू द्या, टीचर असू द्या, मी फार बायबल घेऊन बसणार असू द्या, मी फार बायबल व्यक्ती वाचणार असू द्या, मी काही असू द्या, पण जर का मी शरीराच्या वासनेच्या मागे व्यक्ती चालणारा असा असेल तर मी स्वर्गाचा भागीदार होणारच नाही. मी स्वर्गात कधीच जाणार नाही. मला स्वर्ग दुरून पण दिसणार नाही, मला काहीही मिळणार नाही. हे लक्षात ठेवा.
गलती का रसपत्र ह्याचा 5वा अध्याय आणि आपण ते वचन वाचूया. फार महत्वाचं वचन आहे. गलतियों की पत्री इसका 5वां अध्याय वचन 19 से आगे. गलतियों की पत्री 5वां अध्याय वचन 19 से आगे. गलती का रसपत्र 5वां अध्याय वचन 19 पासून पुढे. नाउ द वर्क्स ऑफ द फ्लेश आर मॅनिफेस्ट, विच आर दीज: adultery, fornication, uncleanliness, lasciviousness, idolatry, witchcraft, hatred, variance, emulsions, wrath, strife, seditions, heresies, envies, murderers, drunkenness, revelings, and such like, of the which I tell you before, as I have also told you in time past, that they which do such things shall not inherit the kingdom of God. येस, जे लोक या सगळ्या गोष्टी करतात, वरील 19 पासून तर 21 पर्यंत ज्या लिहिलेल्या गोष्टी आहेत जे करतात, ते लोक स्वर्गामध्ये जाणार नाही. वो सारे जन स्वर्ग में नहीं जाएंगे, ये स्पष्ट करके लिखा है, वो साफ तरीके से लिखा है. आमीन. तो परमेश्वर के लोगों, इस बात को समझिएगा, आपके लहू में डालिएगा, आपके खून में घुसाइएगा कि अगर मैं विश्वास से विश्वास तक नहीं चलता तो परमेश्वर मैं परमेश्वर के द्वारा न्यायी नहीं ठहराया जाता. क्यों? क्योंकि यीशु मसीह खुद मुझे उसके शब्द के द्वारा, मुख से निकलने वाले शब्द के द्वारा मेरे अंदर विश्वास से विश्वास, विश्वास से विश्वास, विश्वास से विश्वास भरता जाएगा और मैं उसके पीछे 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 जाऊंगा. क्योंकि उसने खुद कहा है यूहन्ना का 10वां अध्याय वचन 27 में कि मेरी भेड़ मेरी बानी सुनते हैं और मैं उन्हें जानता हूं और वो मेरे पीछे आते हैं. क्या लिखा है? हम फिर से एक बार पढ़ेंगे. बहुत ही उम्दा, बहुत ही बेहतरीन ऐसा वचन है. लिखा है कि मेरी भेड़ मेरी बानी सुनते हैं और मैं उन्हें जानता हूं. कमाल है. मेरी भेड़ अगर मेरी बानी सुनेंगे तो खुदा मुझे जानेगा. ऐसा कैसा? क्या उल्टा होना चाहिए ना कि मेरी भेड़ मेरी बानी सुनते हैं और वो मुझे जानते हैं. नहीं, लेकिन ऐसा लिखा है कि मेरी भेड़ मेरी बानी सुनते हैं और मैं उन्हें जानता हूं. कैसे क्या आप, प्रभु यीशु मसीह, कैसे क्या आप हमें जानेंगे अगर हमने तुम्हारी बानी सुनी? हाँ, क्योंकि तुम मेरे सामने बैठोगे, करेक्ट, और तुम तुम्हारे लालसाओं को मारोगे. मेरे सामने बैठने के लिए इंसान को बहुत बार मरना पड़ता है. ऐसे आयरे गहरे नत्तू गहरे को बानी नहीं आती है. वो इंटरनेट पे जाके कॉपी पेस्ट करते हैं वचन परमेश्वर का, या फिर कुछ भी यहां वहां देखते और बोलते. परमेश्वर के मुख से निकलने वाले शब्द को सुनने के लिए बहुत समय तक बहुत 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 प्रेयर करना पड़ता है. अभी आप बोलेंगे पास्टर इतना प्रेयर करने का टाइम नहीं है. अरे थोड़े से शुरू करो ना. मैंने भी तो 15 मिनट के दुआ से शुरू की थी मेरी लाइफ. मैं क्या पहले से ही 18 घंटा दुआ नहीं करता था. मैं थोड़ा 15 मिनट सुबह, दोपहर को 15 मिनट, शाम को 15 मिनट, फिर बाद में करते करते 20 मिनट 20 मिनट 20 मिनट, फिर बाद में 30 मिनट 30 मिनट 30 मिनट, फिर बाद में 40 40 40, फिर बाद में 45 45, 45 45 45, फिर बाद में 50 50 50. ऐसा करते 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 18 घंटा हो गया. आपको कोई नहीं कह रहा है कि इतना बड़ा थाली लो और पूरा का पूरा खाना ऐसा लो, हाक करके मुंह में डालो. नहीं, थोड़ा थोड़ा लहानसा घास खायचा, चिमणीचा, काऊचा, चिवचा, माऊचा, थोडं तर खा. अमेन. थोडं तर खा. काही गरज नाही अख्खी चपाती घ्यायची, भाकऱ्या 15-20 भाकऱ्या घ्यायच्या, तोंडात टाकायचा. नहीं, आपको ऐसा करने की जरूरत नहीं है. थोड़ा थोड़ा खाओ, थोड़ा थोड़ा खाओ. सुबह 10 मिनट करो, दोपहर को 10 मिनट करो, रात को 10 मिनट करो. करते 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 बढ़ो. आमेन आमेन आमेन. यस. तो मेरी भेड़ मेरी बानी को सुनते हैं और मैं उन्हें जानता हूं. इसलिए प्रभु ने कहा था उन सारे सेवकों को, मत्ती इसका 7वां अध्याय वचन 21 से आगे, कि मैं तुम्हें पहचानता नहीं हूं. परमेश्वर के लोगों, हमें इस बात को समझना जरूरी है कि जब हम परमेश्वर की बानी को सुनते हैं ना, वो लेवल एक होता है जहां पर परमेश्वर की बानी ठहरी है. परमेश्वर की आवाज रुकती है, परमेश्वर की आवाज सुनाई देती है. और जैसे हम रोज रोज दुआ करेंगे, हमारे शरीर के लालसाओं को मारेंगे. और क्यों करेंगे? क्योंकि हमें प्रॉब्लम है.
यस, ये प्रॉब्लम ही होता है जो हमें परमेश्वर के करीब ले जाता है, परमेश्वर परमेश्वर में विश्वास से विश्वास तक ले जाता है। और ये जब होता है ना, तब हमें परमेश्वर हमें नया विश्वास देता है, नए समस्या के लिए। और फिर जब वो समस्या हमसे वो समस्या जब हल हो जाती है पवित्र यीशु मसीह के नाम में, जब हमें जीत हासिल होती है, तब हम महिमा से महिमा में जाते हैं। फिर और एक बार एक समस्या, फिर अगली समस्या, फिर अगली समस्या। हर बार जब हम परमेश्वर के सामने रुके रहेंगे, हमें समस्या आने से पहले ही हमें विश्वास मिल जाएगा उस समस्या के लिए। हालेलुया, आमीन। और हम परमेश्वर यीशु मसीह के पीछे हो लेंगे, हमारे शरीर के लालसाओं के पीछे नहीं, यीशु मसीह के पीछे हो लेंगे। मीन्स मसलन हम वही करेंगे जो यीशु मसीह हमें कहता है करने को। आपण तेच करूया जे आम्हाला येशू ख्रिस्त सांगतो करायला। आमेन। आपण आपल्या देहाच्या मागे, वासनेच्या मागे जगणार नाही, आपण देवाच्या मागे, देवाच्या शब्दामागे जगूया, प्रभू येशूच्या मागे जगूया। आमेन। तर संतो हो, जेव्हा कधी आपण असं जीवन जगूया, आपलं सीट फिक्स्ड आहे स्वर्गामध्ये। हालेलुया। भले तुम्ही चुका केलेल्या असाल, हो झाले असेल चुका तुमच्याकडून, पण याचा अर्थ हा नाही काल चुकलं म्हणून आज पण चुकायचंच आहे, काही गरज नाहीये। जर का तुम्हाला सत्य कळालं तर तुम्हाला सत्याने बंधमुक्त, सत्याला तुम्हाला बंधमुक्त तर करू द्या। आमेन। अगर आपको सच्चाई मालूम पड़ गया, अगर आपको सत्य मालूम हो गया है, तो सत्य को आपको आजाद तो करने दो। कल गलती की इसलिए आज भी मैं करूंगा, और कल भी करते रहूंगा क्योंकि मैंने कल गलती की। इसका मतलब आप गलतियों में एंजॉय कर रहे हो, फिर आप गलती नहीं कर रहे हो, आप पाप कर रहे हो क्योंकि आपको मजा आ रहा है उस पाप का। ऐसा मत करो परमेश्वर के लोगों। उस समस्या में अगर आप जा रहे हो तो पहली बात तो किसी और को उसमें मत खींचो कि आप भी आओ मेरे लिए दुआ करो, कोई जरूरत नहीं है। आप खुद बैठो, नम्र हो जाओ। आमेन। और परमेश्वर के सामने खुद को खोल दो और पवित्र आत्मा से भर लो, और पवित्र आत्मा को कहो, पवित्र आत्मा मेरी अगुवाई कर कि तू मुझे आगे लेके जाएगा विश्वास के एक नए स्तर में, जहाँ पर इस समस्या के ऊपर का विश्वास मुझे मिल जाएगा और मैं इस समस्या को नेस्त नाबूद कर दूंगा, उद्ध्वस्त कर दूंगा प्रभु यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, आमेन। और फिर हम उस महिमा के क्षण में, महिमा के स्तर में जाएंगे, महिमा से महिमा तक, विश्वास से विश्वास तक। हालेलुया। तो ये है विश्वास, स्वर्ग का चलन। आमेन। आइए हम इस विश्वास का इस्तेमाल करेंगे स्वर्ग से हर चीज प्राप्त करने के लिए, हर जवाब प्राप्त करने के लिए, हर चमत्कार प्राप्त करने के लिए, हर चंगाई प्राप्त करने के लिए। आइए हम दुआ करें। Thank you, Lord my God, for your word that came to us alive, for showing us, Lord my God, what we need to do, Lord, to receive faith, Lord. How should I come before your throne of grace and mercy, and how it is imperative, Lord, that I receive faith for every crisis of mine, Lord my God. Thank you, Lord, for talking to me, Lord. Thank you, Lord my God, for making this word alive, oh Lord my God, or speaking to our lives, oh Lord my God. Bless the Lord, I seal this word in our hearts with thy precious blood, precious oil, and the fire of the Holy Spirit, Lord my God. And beloved Lord my God, I pray help us to bring forth fruit hundredfold accordingly, Lord my God. Help us all, Lord my God, to use our problems as a springboard to catapult ourselves in the next level of faith and the next level of glory, Lord my God. Thank you, Jesus, for speaking to us and showing us what we need to do in these last days, Lord. I seal this word once again in our hearts with the precious blood, precious oil, and the fire of the Holy Spirit. Thank you, Jesus. And help us all, by your grace, Lord, to bring forth fruit hundredfold. In Jesus' mighty name we pray and we ask. आमेन। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड सभी को। और प्लीज़ अगर आपके साथ इस वचन ने बात की है तो कृपया करके अपने सारे मसीह भाइयों और बहनों को, कलीसिया के जितने भी है, सबको ये मैसेज प्लीज़ फॉरवर्ड कीजिएगा, ताकि हर एक विश्वासी, हर एक मसीह जो है वो स्वर्ग का भागीदार हो जाए, स्वर्ग में जाए। आमेन। और वो विश्वास के एक नए स्तर में जाए, अपनी खुद की समस्या वो पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा उस समस्या को नेस्तनाबूद कर देगा, उस तूफान को शांत करेगा, उस
उस भूचाल भरे पानी के ऊपर खुद चलेगा और एक नया विश्वास, एक नई उमंग वो परमेश्वर के द्वारा प्राप्त करेगा, नया जोश प्राप्त करेगा। हालेलुया। और उसकी प्रार्थना में और तीव्रता आएगी और पवित्र आत्मा की अग्नि आएगी और वो परमेश्वर के और करीब जाएगा। ऐसा होने दो, सिर्फ आप ही नहीं लेकिन आपके जितने भी मसीह भाई और बहनों को कृपया करके इस मैसेज को फॉरवर्ड कीजिए और उनको एक आशीष का कारण उनके ज़िंदगी में बनिए। थैंक यू सो मच। और प्लीज़ अगर आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल को टाइमेनिकल मिनिस्ट्री इंटरनेशनल, तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा इस मैसेज को। और प्लीज़ अगर आपका कोई कमेंट हो तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर आप चाहे तो हमें ईमेल भी भेज सकते हैं और हम बड़े ही आनंद से आपके सवालों का जवाब देंगे। Amen. So God bless everybody. Soar up high with wings as eagle in the Lord and love you all. Thank you so much. Praise the Lord.